Hi guys, welcome to another TestNet podcast. And today we have Subham Haval from Sangli, Maharashtra. And he cracked TestNet exam and finally got disaster management post TISS Mumbai campus. Basically, he is engineer, electrical engineer, and disaster management he applied in TISS and finally got selected. So yeah, Subham, hello and congratulations for your selection. Hello, thank you, sir. So after getting TISS, Subham, how's the feeling? And कितना desperately you were seeking admission in TISS? Actually, sir, TISS is the biggest institute of India, social science के oriented. तो फिर हर एक बच्चे का सपना होता है कि यार ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से किया जाए. तो आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड इन TISS, I feel very proudful about me. Okay, okay. Want to understand आपका जो work experience है overall, industry oriented, वो कैसा है और academic background भी अगर थोड़ा brief करोगे तो better रहेगा. एक्चुअली सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैंने एक 6 आवर्स की एक प्रिपरेशन की थी. मतलब आपको हर हफ्ते एक दिन छुट्टी रहनी चाहिए खुद के लिए, पूरा एंजॉय कर सकते हैं आप उस दिन के लिए, लेकिन बाकी के 6 दिन आपको एटलीस्ट 6 आवर डेली पढ़ना पड़ेगा इस नेट क्रैक करने के लिए. तो इस फिलोसॉफी से और इस प्रैक्टिस से मैंने 6-7 मंथ में टीएसनेट क्रैक किया था. And what about your work experience? कौन सी कंपनी है, कब से कितने साल का experience? Actually, sir, after completion of my BTech from electrical engineering, I was doing the preparations of CAT as well as. That's why nothing else for the job any. So job वगैरह में अभी तक enroll ही नहीं, मतलब कि no work experience. No, sir, no, sir. When you started your TestNet preparation and how you channelize your preparation? Actually, sir, जब BTech मेरा complete हुआ था 2019 में, तभी से TestNet के लिए prepare कर रहा था. लेकिन 19 का तो clear नहीं हुआ, लेकिन 20 के लिए फिर से मैं अपेयर हुआ TestNet के लिए और फिर सेकंड चांस में TestNet कंप्लीट हो चुका है. Okay, so first time you written but couldn't clear it, so repeat किया and then finally crack the Yes, exam. sir, yes, of course, sir. Okay, okay. So मतलब basically repeat किया आपने. जो लोग repeat करने वाले होंगे उनके लिए एक best motivation होगा, because idea होता है कि एक बार नहीं हुआ तो people leave it, but yes, फिर से अपने को try करेंगे तो definitely scope of getting selection, chances of getting selection ज़्यादा हो जाता है. Okay, so yeah, understanding your daily routine in terms of the preparation. What was your daily routine? Actually, sir, you have to study at least 6 hours per day. For that, I was doing the preparations for GK for 2 hours. After that, I was giving the 1 hour for reasoning and 1 hour for maths. After that, I doing the preparations for English also for comprehensions and vocabulary for 1 hour. And for last 1 hour, whatever you have done in that particular day, I was revising all that things in respective hour named as short-term revision. And at last moment, half an hour, I was preparing for what you can say current affairs and all that. Okay, so basically it was very much defined कि भाई 2 घंटा GK पढ़ना है, one Yes, hour sir. का time breakup for other section and obviously very important revision, short term revision. Short-term जो revision, पूरे yes, sir. पूरा overall day में prepare किया उसको लेके revision होना चाहिए. Great. Coming to the mock test, basically Subham joined us for the mock test program. Last year we had launched 25 mock tests. This time 25 mock tests on on your portal. So he joined us for the mock test program. How was your experience with regards to the mock test? एक्चुअली सर मुझे लगता है कि किसी भी कंपटीशन हो या टिसनेट हो या फिर यूपीएससी हो या स्टेट सर्विस प्रिपरेशन हो या गेट हो, कोई भी मॉक टेस्ट अपने प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद रहता है, उस टाइम में आप कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट बताता है. अगर आप मॉक में कुछ गलतियां कर सकते हैं, लेकिन वो गलतियां आप सुधार सकते हैं अपने फाइनल रिजल्ट में, तो फिर मॉक देना मस्ट है मुझे लगता है. और आपके इंस्टीट्यूट का मॉक तो बढ़िया रहता था, मुझे तो डेफिनेटली 101% उसका बेनिफिट मिला है. Okay, okay, great. So जो mock test आपने लिखा था और when you written the real exam of TISS, उसको कितना relate कर सकते हो in terms of the difficulty level, in terms of the strategy which you have built up, and obviously the level of questions.
एक्चुअली सर अगर आप एटलीस्ट 6 और 7 मिनिमम 10 मार्क्स दे सकते हो तो आपकी एक मेंटेलिटी प्रिपेयर होती है उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए और किस क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए और किस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी तो निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आपके लास्ट मिनट में जब आपको टाइम मिलता है सोचने के लिए, अगर मिलता है तो आप उसका चांस ले सकते हैं, लेकिन या फिर आप गेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉक से प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मॉक के हिसाब से और पूरे एग्जाम के हिसाब से आई रिलेट 65 to 70% क्वेश्चंस, बिकॉज मॉक के ओरिएंटेड और करंट अफेयर्स के ओरिएंटेड 70 to 75% आते हैं टिसनेट के एग्जाम में। Okay, okay. So basically writing mock is much more crucial. That is why यस सर, keep on ऑफ कोर्स। saying कि आपकी preparation के साथ mock लिखते रहो. Although you have not done with your preparation, entire preparation नहीं हुई है, it's okay. But जितनी भी preparation होगी एक mock week में तो लिखना बनता है. यस सर, यस ऑफ कोर्स, हर सैटरडे और संडे यू कैन गिव एटलीस्ट 1 मॉक। Yes, week में एक mock लिखने के बाद then in a month 4 mock test लिखने के बाद you will get to know कि क्या preparation हुई है और क्या type के question में you are getting stuck, what is your strong area, weak area, everything यस get सर। sorted in that within that regards. Okay, coming to the very important question regarding your interview. जो आपका TISS में interview हुआ था, what types of the question they had asked and कितना आपने उसके लिए prepare किया था and obviously what was your overall experience? सर एक्चुअली टीआईएसएस में जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो हर किसी बच्चे को आप टीआईएसएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। आपका आंसर वेरी मच क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप क्यों टीआईएसएस ज्वाइन करना चाहते हो, आपका मोटिव क्या है। तो उस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से आपको 50% आइदर यू विल बी इन और आउट। तो उसके हिसाब से आपको टीआईएसएस का पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए, टीआईएसएस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आप उसका क्लियरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। एल्यूमिना पासेस फ्रॉम टीआईएसएस वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में वो आपको पता होना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि टीआईएसएस का करिकुलम स्ट्रक्चर क्या है, उसके इंटर्नशिप किस प्रकार होते हैं, फील्ड वर्क वगैरह किस प्रकार होता है वो आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट आपको ऑनेस्टी रखना पड़ेगा वहां, क्योंकि आपका एटीट्यूड एंड आपका नॉलेज ये दोनों टीआईएसएस चेक करता है। सो अगर आप पूरे ऑनेस्टी के साथ और एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू दे रहे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इंटरव्यू easily. Very good. So this is what the some important experience shared by Subham regarding the interview. So overall जो इसका selection है वो 2 फेज में, फेज 1 जो है आपका वो टिस्नेट का एग्जाम है, फेज 2 में आपका इंटरव्यू आ जाता है और टिस्पैट या मैट ये सारे एग्जाम्स आ जाते हैं। बट टिस्नेट इज ऑब्वियसली दैट इज द स्टेज नंबर 1, वही क्लियर नहीं होगा तो आपका स्टेज तो इज लाइक कि कोई यूजफुल नहीं। एनी काइंड ऑफ अ टिप्स और द सेशन ड्यू टू द अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट? सर मुझे लगता है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है टिसनेट के बाद इधर वो पैट लेते हैं या फिर ऑनलाइन असेसमेंट लेते हैं और आफ्टर दैट वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो इस पूरी जर्नी में 3 स्टेप्स है, लाइक वी कैन से दैट प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। फॉर दैट आपको करंट अफेयर्स के ओरिएंटेड हिसाब पूरा पढ़ाई करनी पड़ेगी। 6 days का प्लानिंग आपको करना पड़ेगा मिनिमम। आफ्टर दैट आपका मॉक टेस्ट लेना मस्ट है, मॉक टेस्ट तो आप तो करना ही है, मतलब कुछ आप 2 घंटे कम पढ़े वो चलेगा लेकिन आपको मॉक देना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यू के हिसाब से वो क्वेश्चन किस प्रकार पूछते हैं आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, टीआईएसएस का पूरा कल्चर जान सकते हैं, क्योंकि टीआईएसएस इज आईआईटी ऑफ सोशल साइंसेस ऐसा कहते हैं। तो 3 या 4 लाख स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई करते हैं और फ्यू स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड इन टीआईएसएस मुंबई कैंपस पर्टिकुलरली। सो अगर इतनी बड़ी कंपटीशन है तो आपको उतना बड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, उतनी बड़ी आपको फाइट देनी पड़ेगी और उसके लिए उतना बड़ा आपका एफर्ट्स, सैक्रिफाइस एंड प्रिपरेशन होनी पड़ेगी। दीज आर द कीज ऑफ सक्सेस। Okay. I hope I don't have to say anything. Everything done by the Subham with regards to the preparation, with regards to the number of hours one should devote. 6 to 8 hours, ideally one should devote would be better if you have a lectures also. And obviously, mock test is important. Interview preparation, and along with your interview preparation, like a newspaper reading is obviously that will be add on in your kind of add on in your preparation, like general awareness information, editorial page and many more things you should add on. So I think everything covered by the Subham preparation को लेकर और revision तो must है, वो अपने को continue करते रहना चाहिए. Okay. Alright guys, so that's all from Subham side and thank you Subham sharing your experience. आपने काफी कुछ information दे दी। ये podcast के बाद I think बहुत लोग के
डाउट्स जो भी होंगे विद रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन एंड ऑल द पैरामीटर्स व्हिच वी हैव कवर्ड वो सब क्लियर हो जाएंगे. So thank you Subham for joining and giving this precious time and giving brief information regarding your preparation Most welcome, experience and the interview. Yeah. Bye bye. Thank you. Have a good day, sir.